जब आप टेक्निक करते हैं, जब आप टेक्निक जो यूज करते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर से, थोड़ा सा फीडबैक से स्टार्ट करते हैं कि आपको जब भी कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं आप, चाहे वो प्रोलॉन्गेशन है, बाउंसिंग है, वॉलंटरी स्टैमरिंग भी एक तरह की टेक्निक ही है, अम, कैसा फील होता है आपको? कि थोड़ा सा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कोई? हाउ डज You इट can फील raise टू your यू? hands. Anybody can raise your hand, and then हाँ, we'll डॉक्टर invite them. विजय। Good Yes, Dr. afternoon. Vijay. बोलिए. Good afternoon. Regarding the technique, I personally have the experience that we have developed the equilibrium. Means for a daily life, which stammering we have developed some sort of like own techniques, and now we are using the technique which we are learning from here. हम्म। So something confusion is there. Sometimes we get confused. Means we are deciding to use the technique, but the when the situation comes now, हम्म। then there is confusion. हम्म। Means actually I am deciding to bounce on some subject, and on some words, but it gets stammered, you know. So it feels something like this, but your suggestion that I mean, though the stammering is coming, so there should be eye contact. हम्म। So that technique I am following, sir. हम्म। Means I am talking to student. Right now, I have conducted like one class. So in that class, so I mean, my technique was old thing that like I used to pause, sometime write down, short explanation, write down, like pausing and all these things. Uh, but I experienced to go for bouncing, and that for one word I get like stuck up or blocked. So I हम्म। felt something there, हम्म। some sort of this confusion in the mind while like using the technique is coming. हम्म। ओके। ओके, थैंक यू फॉर दैट फीडबैक डॉक्टर विजय। दो शब्द आपने यूज किए, मैंने लिखे। एक तो है कि हम हमारा अपना ही इक्विलिब्रियम है, कोई अपना ही संतुलन है। और ये टेक्निक जो है वो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट वो, ये हमारे संतुलन का फीचर नहीं है। तो एक नया चीज है अब जो हम यूज कर रहे हैं, और आप उसके उसके रिलेटेड में ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कैसे यूज करनी है, क्यों। ओके, सो थैंक यू। और कोई, एनीबडी एल्स? सवाल सर मैंने पूछा था, अगर आप लोग कोई कोई थोड़ी लेट आया तो मैं सवाल में रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, चाहे प्रोलॉन्गेशन है, बाउंसिंग है, जो भी है, तो क्या फीलिंग होती है आपको? क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? अगर आप डिस्क्राइब थोड़ा कर सकें तो। डॉक्टर विजय ने अभी बोला था कि हमारा अपना इक्विलिब्रियम है, तो ये टेक्निक्स आर नॉट पार्ट ऑफ दैट इक्विलिब्रियम, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यूज करने के लिए। तो योगेश्वरी हैज अ कमेंट, लेट्स गो टू हर नेक्स्ट। सर हम जब शांत होते हैं तो ही हम टेक्निक्स का यूज कर पाते हैं। अ, हम्म। जब हम ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं तो हम टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसा मैंने फील किया। या, एक्सीलेंट पॉइंट कि जब हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं तब हम ज़्यादा ठीक से यूज़ कर सकते हैं। जब रिलैक्स नहीं होते हैं, थोड़ा टेंस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो मुश्किल होती है। ओके, थैंक यू। और कोई? One more, one more
I want Sure, to add one thing. sure, So, Dr. Vijay. Go ahead. so there is like a little, can say confusion is there while using the technique. It's true, but I have experience on that the anxiety is the fear factor and anxiety is like reduced too much. So I never thought of the poster presentation like in front of jury. So the directors were there, three directors were hearing me. So I never thought of that. So that thing I did, and for that I have got prize. I never thought that. The thing is that anxiety and fear, like Mm, sweating, I mean, I used to feel the sweating in my palms. mm, Uh, before using the technique and all these things, but the mm, anxiety they reduce to the great extent. So mm. that's the positive, very positive thing for me. तो आपने बताया कि इफ आई कैन अंडरस्टैंड आपने क्या बोला अभी कि जो कंफर्ट लेवल है आपका ज्यादा हो गया ऊपर Yes. जैसे कि आपने टेक्निक यूज की लोगों के साथ तो आपका योर योर कंफर्ट लेवल इंक्रीज्ड राइट ओवर माइंड टाइम माइंड माइंड में ये आता है सर कि अभी अटक भी गए ना, हम्म तो ब्लॉक से बाहर आ सकते हैं। अगर आए हम्म भी नहीं तो भी कोई कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। बस आई हम्म कांटेक्ट रखो, कोई फर्क हम्म नहीं पड़ता है, हंस के जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं खुद फील कर रहा हूँ चेंज। ओके ग्रेट थैंक यू मनीष मनीष अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। इवनिंग जब हम बोलने से पहले ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तब हम स्टैमरिंग ज्यादा बढ़ जाती है, और जब हम बोलने से पहले पॉजिटिव रहते हैं तो हम टेक्निक का ज्यादा यूज कर पाते हैं। हाँ जी। हम्म ठीक है थैंक यू तो ये जो भी माइंडफुलनेस है जो हमको लगानी है अपनी स्पीच के ऊपर ये थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी अगर हम रिलैक्स स्टेट में होंगे ओके थैंक यू आई वांट टू हियर फ्रॉम विद्या if you want to say something Vidya Yeah, I mean, I feel like we get a choice to stutter in the word that we want to stutter. So instead of actually focusing on the fear of stuttering, I am focused on the where to use the technique. So that kind of uh, take away that anticipatory thing that I was having. Yeah. yeah yeah Yeah. So if you put your mind on the technique and instead you get distracted from all the other anxieties and everything else that goes with it, you can focus your mind a little bit more on this novel behavior that you're trying to do, as opposed to the overthinking and the anxiety and all of that. Okay, great. Let's take a few more comments. और कोई? Rajanikanth, do you want to say something? Question is, how do you feel when you use techniques? अनहम? यस सर। सर जब कभी कभार जब टेक्निक यूज करने से पहले ये थॉट भी आता है कभी कभार के थोड़ा सा एबनॉर्मल ना लगे मेरा बोलना। अगर हम हकलाते तो फिर भी थोड़ा वो नेचुरल लगता है, लेकिन जब अगर बाउंसिंग की बात करूँ तो अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम अरहम है तो थोड़ा एबनॉर्मल लगता है। ये थोड़ा थॉट आता है बस एक। इस Sure, बारे में थोड़ा बताइए। sure, absolutely. Yeah. तो इस बारे में बताने के लिए लेट्स डू अ लिटिल एक्सरसाइज जो आपने बोला थोड़ा सा नॉर्मल लगता है यूज करना हमारी स्टैमरिंग करना पर्टिकुलरली स्ट्रगल करना हमें ठीक नहीं लगता अच्छा नहीं लगता लेकिन टेक्निक भी थोड़ा सा फॉरेन लगता है अजीब सा लगता है इट्स नॉट इट डजंट फील लाइक इट्स
me, doesn't feel like मैं हूँ, doesn't feel like मेरी बोली है ये। तो एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं सब एक्चुअली। अगर कैन एवरीबडी कम ऑन कैमरा फॉर अ सेकंड, अगर कोई can people turn the cameras on? Can we ask people to do that for like 2 minutes? Ankit, Nyai, Yogeshwari, Himansh, Ivyanshi. Let's do a little exercise. I want you to see how you go through this. तो एक पेपर पेंसिल लीजिए और कुछ लिखेंगे हम। Let's try it in the old school way. No typing. Let's write it down. तो चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, अपना नाम लिखिए। और अगर लिख लिया तो बस ये, और ये दिखा दीजिए मुझे अपना, जस्ट थंब दिखा दीजिए, सो आई नो यू डन। ओके, गुड, ऑलराइट, ठीक है, सबने नाम लिख लिया? यस, ओके। अब फिर से लिखिए अपना नाम, लेकिन तेज लिखिए, राइट इट फास्ट। ओके, लिख लिया? ऑलराइट, नाउ राइट इट स्लोली अगेन, थर्ड टाइम, राइट इट स्लोली, think about it, write it slowly. All right, लिख लिया? Yes. Okay. लास्ट बार, आखिरी बार इस राउंड में एक बार और नाम लिखिए अपना, जस्ट रेगुलर रेट पे लिखिए, रेगुलरली लिखिए, अपनी स्पीड पे लिखिए। ओके, जैसे कि डॉक्टर सचिन बता रहे थे, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे बिगिनिंग में कि इसको मोटर मूवमेंट क्या बुलाते हैं। अगर ये भी मोटर मूवमेंट है, ये भी मैकेनिकल मूवमेंट है, हाथ को प्रेशर लगा के एन से लिखना, दिस इज आल्सो मैकेनिकल मूवमेंट, मोटर मूवमेंट। तो इस मोटर मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताएंगे आप मुझे? इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग अ नेम, व्हाट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? एक और शब्द में कैसे डिसाइड करके बताएंगे मुझे? हाउ डू दैट फील? There you, it looks like you're ready to say something. Raise your hand and answer. Anybody can answer this question. Very simple No, I question. mean I wanted to ask what is the question again? Can you just My question is, how would you describe this mechanical movement? How did that feel in your body? Did it feel natural? Did you feel fluid? Did you feel comfortable? Just describe this everyday act of writing your name. How would you, like, what words would you use to describe it? it felt deliberate and natural to an extent, a mix of both. Natural and deliberate at the same time. Okay, good. Yeah. I'm just writing down what you're saying. That's all right now. Anybody else? Or koi? Ankit Raj, how will you describe what you did just now? पहला 3 I think मतलब it was consciously driven. Fourth one, it kind of went in subconscious state where like even though I was told to write it normally, but I kind of wrote it very fast, like involuntary muscle movement. Involuntary muscle movement. Thank you. Very automatic. I think the word I'm taking from you that it was very automatic, right? Automatic motor movement. Yep. Dr. Vijay? As we are doing this in the slow motion,
and we are doing this like mindfully. Hmm. Means we are doing Yeah. this mindfully. Yeah. We are writing Yes. one after another Yeah. letters. And So when I told you to write it slowly, you had to put your mind to it a little bit more. You had to put some thought into automatic mode of movement. Okay. Okay. Anybody else? I'll take a couple more reactions. न्यायी, what do you think? न्यायी. जब जब सर ने बोला कि जैसे जैसे मैं नॉर्मल लिखती हूँ वैसे लिखो, तब नॉर्मल लगा। बट जब उन्होंने बोला कि स्लो स्लो से लिखो, तब थोड़ा स्लो में लिखने में प्रॉब्लम है। Okay. Okay. Good. All right. Let's do this again. Let's do this exercise again. But let's do it with a non-dominant hand. The other hand. The other hand. अपना नाम लिखिए, दूसरे हाथ से लिखिए. देखिए अब कितना नेचुरल लगता है. लिख लिया योगेश? मैंने लिख लिया. Okay, good. Okay. Let's try. ये थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज है, इसलिए एक बार और दूसरी बार इसको ट्राई करते हैं. नॉन डोमिनेंट हैंड से, दूसरे हाथ से फिर से लिखिए अपना नाम. Get a Sorry? bit more comfortable. I said just write it again with your non-dominant hand. A second time. Good. Okay. All right. जब लिख लिया तो मुझको thumbs up दे दीजिए. Okay. Good. Let's write it a little bit faster now. Again, the other hand. A little bit faster. Just a little bit faster. Okay. One thumbs up. Anybody else done? There you're done. Kit, you're done. Okay. Okay. Let's describe that movement. अगर इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है आपको, तो पहले एक्सपीरियंस में आपने व्हाट आई कुड टेक अवे इसकी नेचुरल लगा, ऑटोमेटिक लगा, थोड़ा सा सोचना हुआ मुझे कि जब मैं धीरे लिखूं तो मुझे आई हैड टू थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर. तो इस एक्सपीरियंस को, जो दूसरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको दिया नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखिए, उसको कैसे डिस्क्राइब करके बताएंगे मुझे मनीष? जब मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा तो उसमें मिस्टेक्स कम थी, स्लो स्लो लिखा, स्लो में. और जब मैंने फास्ट में लिखा तो मिस्टेक्स या स्पेलिंग में या राइटिंग में काफी डिफरेंस था. हाँ जी. तो जो अक्षर है वो ठीक से फॉर्म नहीं हुए? हाँ हाँ जी, हाँ जी. अच्छा. ओके. ओके. गुड. एक्सलेंट. सो इट लुक डिफरेंट. मतलब कि जैसे कि लगना चाहिए वो ठीक से नहीं लगा. मतलब कि जैसे मैं हाथ से जो जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, जब आपने अपने राइट हैंड से लिखा तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फेमिलियर लगी. जो लेफ्ट हैंड से लिखा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो थोड़ी अनफेमिलियर लगी. तो अक्षर ठीक से फॉर्म नहीं हुए. राइट? एम आई हाँ. राइट इन दिस? यस यस. ओके. व्हाटएवर. और कोई व्हाट वर यू गोना से विद्या? It felt, uncontrolled and unnatural. Uncontrolled, unnatural. Okay. Okay. Keep going. Sir. और कोई? योगेश्वरी?
जब कोई 5 साल का जब छोटा बच्चा रहता है वो जैसे लिखता है उसका जो अक्षर रहता है वैसा ही आया सेम। हम्म तो अगेन जैसे कि मनीष ने भी ये सिमिलर चीज वो बोली कि मतलब इट लुक लाइक ए चाइल्ड्स राइटिंग, मतलब कि अच्छे जैसे लिख रहे हैं उसको, जैसे वो लगता है वो दिखने में जो अक्षर ऐसे लगते हैं वो लगे। ओके, गुड। व्हाट एल्स? और कोई? You said something interesting, Ankit. Do you want to go? Do you want to describe your experience as well with this? Yeah, so it was always conscious. It was Mm, like never fast as compared to my right hand. It was mhm, always slow. The other thing is that even in the basic form, it was deformed. And the mm, more fast I tried, the more deformed it became. mm. The faster Yes. you went, the harder it got. Okay. Okay. Great. Ivyanshi, you want to say something? Describe your experience a little bit. जब मैं दूसरे हाथ से लिख रही थी तब मैं बहुत सोच समझ के लिख रही थी, फिर भी वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा था। और, और हम्म वर्ड्स एकदम स्ट्रेट ही जा रहे थे। हम्म हम्म। ठीक है, तो लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन जो बाहर निकला, जो शब्द जो लिखे वो ठीक से फॉर्म, ठीक 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 नहीं लग रहे थे, अनफेमिलियर लग रहे थे थोड़े से, बट यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट। हाँ, So, सबकॉन्शियसली लिख रही थी। it was a very conscious experience, as Ankit is also saying. You had to put a lot of mind to it. माइंड। It was cognitively effortful, right? It's a cognitively effortful task. Takes mindfulness. Whenever you're turning something automatic into something deliberate, turning something automatic into something volitional, जो भी हम ऑटोमेटिक चीज, जो ऑटोमेटिक मैकेनिकल मूवमेंट हो जो हम कर रहे हैं मीनिंग बनाने के लिए, राइट? सो वी राइट टू मेक मीनिंग, वी टॉक टू मेक मीनिंग, and our focus needs to be on meaning because we don't want to think about our writing, we don't want to think about our talking. But the moment we start doing something different, using another way of doing the same thing that is automatic, it turns into something that feels unnatural. It has to always be thought about, so it's always conscious. It's going to be slow because the movement is unfamiliar. And ultimately, it's going to sound different. It's going to look different. With all that effort, it's still going to look different. तो ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जब मैं ग्रेजुएट कोर्स स्टैमरिंग में पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ जब हम जब हम उस मॉड्यूल पे जाते हैं, जब हम स्पीच मोटर टेक्निक के बारे में बात करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल ये हमेशा ये देता हूँ कि दिस इज व्हेन यू पुट योर माइंड टू समथिंग ऑटोमेटिक, it can feel very different. It can feel unnatural. It can feel effortful, cognitively effortful. So this is a way of looking at using motor techniques. Because हमारी जो बोली है, हमारी जो स्पीच है, वो फुली ऑटोमेटिक बिहेवियर है, और उसके बारे में सोचना, इतना सोचना कि हम that it's not going to feel the same. So what I'm trying to say to you is कि जो भी आपको, जैसे कि डॉक्टर विजय ने बोला कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब टेक्निक यूज करते हैं, हमारा अपना इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम के को से बाहर जाना, किसी और चीज का करना, subjecting the body to something else is inherently challenging. So I think I want to provide this context to talking about speech motor techniques. Ki it's kind of like writing with your non-dominant hand. It can feel like that. और अगर आप
इस लिहाज से चलें, if you just take this at its face value now that you've had the experience, if you move through that, इसका logical next step क्या होगा कि जब आप जितना आप नॉन डोमिनेंट हैंड से और प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप को एक्सपीरियंस देंगे, अगर आपका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया और आपका लेफ्ट हैंड ही है, all you have is your left hand, your non-dominant hand to use. You have to use it. तो ओवर टाइम जैसे शर्ट को बटन करना है, बेल्ट लगाना है, ये सब कुछ जो है, all this will over time get a little bit easier. The movement will become a little bit more familiar. And speech is something that is highly automatic behavior. It's muscle memory. Like walking, like talking, like writing, it's muscle memory. So the moment you're doing something that is not muscle memory, you're turning muscle memory into something that's very conscious, it's going to feel very different. It's going to it's going to feel effortful. So that is the context for using novel behaviors in speech. अगर मैं बाउंसिंग करूंगा, जैसे मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूं, मैं बाउंसिंग भी इस एक टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग है, क्योंकि स्टैमरिंग हो रही है लेकिन उसमें संघर्ष नहीं है, एफर्ट नहीं है उसमें, थोड़ा सा कंटिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूटी है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। मैं अपने शब्द जो है जिसको रेपिटेशन कर रहा हूँ, वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ अभी मैं, लेकिन ये एफर्टफुल ज्यादा नहीं है क्योंकि मुझको इसमें काफी प्रैक्टिस है। अगर मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग प्रैक्टिस करके अपने थोड़े से पुल आउट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे ये पुल आउट है कि मैं अपने होठों में थोड़ी सी टेंशन डाल रहा हूँ, अपने जीभ में थोड़ी सी टेंशन डाल रहा हूँ, ताकि मैं उस टेंशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकूं। ये पुल आउट है। ये सब कुछ ये सीखना जो है कॉन्सेप्चुअली आसान लगता है। बाउंसिंग कॉन्सेप्चुअली आसान लगती है, पुल आउट कॉन्सेप्चुअली आसान लगता है, लेकिन बॉडी को आसान नहीं लगता, क्योंकि ऑटोमेटिक बिहेवियर को हम कॉन्शियस बिहेवियर बना रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ these टेक्निक्स। Unless we are doing what is called pre-stutter corrections, अगर जैसे कि हम समझ जाते हैं, हमारी एंटिसिपेटोरी एंजाइटी कुछ लेवल पे है, तो हम जानते हैं कि किस शब्द के ऊपर हकलाएंगे, वो हम जानते हैं, हमारी बॉडी जानती है कि हमारी ये शब्द जो है, ये साउंड जो है, ये मेरे लिए मुश्किल है। तो अगर हम पहले से ही थोड़ा सा एडजस्ट कर ले हमारा पोस्चर, तो ताकि हकलाहट हमें कम हो, स्ट्रगल कम हो या नहीं हो, in some combination, that is called pre-stutter correction. If I know I'm going to stutter on a particular word, अगर मैं जानता हूं कि मैं के अगले के एक शब्द आने वाला है, उसके ऊपर मैं हकलाऊंगा, तो अगर मैं डिटरमिन कर लूं कि मैं उस शब्द के ऊपर थोड़ी सी प्रोलॉन्गेशन करके निकलूंगा, तो वो प्री स्टटर करेक्शन है। स्टटर के स्टैमरिंग होने के पहले मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं। ये भी हो सकता है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, कि मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मूवमेंट के ऊपर फोकस करने की मेरी क्षमता नहीं है अभी। ठीक है, तो चाहे तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं पहले नहीं कर सका थोड़ी सी एडजस्टमेंट, तो मैं बाद में कर लूंगा। किसी शब्द के ऊपर हकलाऊंगा, जिज 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 जैसे ज- ज- जैसे, लेकिन मैं उसको रिपीट करके फिर बोलूंगा। ये कैंसलेशन है। तो एक टेक्निक जो है मैंने पहले एम्प्लॉय की, स्टैमरिंग के पहले एम्प्लॉय की, एक टेक्निक जो है मैंने स्टैमरिंग के बाद में एम्प्लॉय की, जो कैंसलेशन है। ये कैंसलेशन
cancellation है, that was a cancellation on a cancellation. और अगर मैं स्टैमरिंग के ब्लॉक में बीच में होता हूं, जैसे कि ब्लॉक में बीच में होता हूं, तो मैं उस ब्लॉक को आराम से, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर अपना थोड़ा सा पोज एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आप योगा क्लास में जाएंगे तो आपका थोड़ा पोज होगा, योगा का पोज को आपका इंस्ट्रक्टर आएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मिड पोज में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। तो ये जो एडजस्टमेंट जो है, जो मैं कर रहा हूं, ये इसको पुल आउट बुलाते हैं। तो आप स्टैमरिंग की स्ट्रगल जो है, संघर्ष जो है, जो एफर्ट जो आप लगाते हैं, 3 जगह पे चेंज कर सकते हैं: स्टैमरिंग के पहले, स्टैमरिंग के बाद, और स्टैमरिंग के बीच में। और इन चीजों को यूज करने के लिए, दिस इज लाइक राइटिंग विद योर लेफ्ट हैंड। इसलिए इसलिए हमको we have to learn to adjust our expectations. That's very important. It's very important to understand what we're doing here. We are not trying to eliminate the stammer, right? We're not saying कि stammering नहीं होनी नहीं चाहिए, क्यों? That is, I mean, हम हकलाते हैं, we are people who stammer, हमारा हक है हकलाना। So हकलाने में हक भी है ना, हमारा हक है हकलाना। तो we're not trying to not be people who are stammering, but we're trying to reduce struggle, because nobody likes to struggle. Nobody likes to push. Nobody likes to blink their eyes, and nobody likes to move their. It's very effortful to do all that stuff. And it is also, it's for a lot of us, it's not a very satisfying way to communicate, because if you're struggling a lot, we're not able to get a message across. We're not able to get a message across. We're not able to connect with the listener. All of these things can happen routinely to us as people who stammer. So let's understand कि technique का purpose यही है कि the purpose is not to inhibit the stammer, because that, अगर आप inhibit करेंगे stammering को, तो how is that different from avoidance? Right? Because avoidance में क्या हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ना हकलाएं। तो अगर हम टेक्निक को भी ऐसे यूज करके अगर यूज करें कि हम ना हकलाएं, it is only going to add to the stress. It's going to only add to the anxiety. It's going to keep us emotionally reactive. It's going to keep us in an emotionally reactive place. लेकिन अगर हम सोच लें कि हम टेक्निक का पर्पस ये है कि हम जब हकलाएं तो हम कम इंटरफेरेंस से हकलाएं, हम थोड़ी सी एजेंसी से हकलाएं, थोड़ी सी मैनेजमेंट से हकलाएं, थोड़े से कंट्रोल डेवलप कर लें, तब जो है then they land differently in the body. So I would say to you, be very clear as to what the work is when you're using the technique. काम ये है, काम मुश्किल है ये, क्योंकि the body doesn't want to focus on 2 things at once. We don't do 2 things at once. This is what Dr. Sachin and I were talking before everybody came on, that this whole notion of doing multitasking that we talk about from machine learning, it's actually not the way the human brains work. We cannot multitask. We're not machines. The best we can do, and we can do this very well, but the best we can do is to switch attention between tasks very quickly. एक काम कर रहे हैं, then we switch the attention to something else, then we go back to something, and we go back to something else. So what we're doing here is this as well. So this is a difficult thing to do. Therefore, how do you make this a regular practice? Well, let's talk about that. कि अगर हमको टेक्निक अगर सोशल सेटिंग में प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, कि इसकी क्या गाइडलाइन हो सकती हैं?
तो एक चीज तो मैं आपको तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रगल कम करने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी, तो हमको थोड़ा सा वॉलंटरी स्टैमरिंग करनी होगी, क्योंकि वॉलंटरी स्टैमरिंग में वी बिल्ड इन द प्रैक्टिस थ्रू वॉलंटरी स्टैमर। तो वॉलंटरी स्टैमर का पर्पस जो है is manifold. It has many purposes. One purpose of voluntary stammering is that we are reducing the anxiety in the experience. We are reducing the emotional reactivity in the experience. हमारा अगर मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ, कभी कभी एक शब्द के ऊपर मैं थोड़ी सी रेपिटेशन डाल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं एज somebody who stammers to a listener. But I can also use that moment to practice my pull-outs. I can also use that moment to practice my cancellations. Right? So it can build in infinite moments of practice throughout the day if I'm willing to put my stamina out there. इसलिए acceptance जो है बहुत important चीज है, क्योंकि अगर हम अपनी स्टैमिना को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को दिखाने के दिखाने से हिचकिचाएंगे नहीं, तब हम इस टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन अपनी स्पीच के साथ सोशली थोड़ा सा कर सकेंगे. That's why when you think about acceptance, think about change. They go together. And in this case, they definitely go together, because unless you are accepting of your stammer, you're not going to be very comfortable experimenting with it. And experimentation is absolutely going to be important to turn this struggle into something that's less struggled. इसलिए voluntary stammering, there are many reasons for voluntary stammering. अगर मैं टेक्निक भी कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी सी voluntary stammering कर रहा हूं, तो मैं अपने कम्युनिकेशन बिहेवियर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं. मैं पॉजिंग भी कर रहा हूं, मैं स्टैमर कर रहा हूं फुल आई कॉन्टैक्ट के साथ. तो मेरे लिए शायद थोड़ी देर के लिए वॉलंटरी स्टैमरिंग ही काफी है, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं लेकिन एफर्ट के साथ मूव नहीं कर रहा हूं. मेरी कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी डिसरप्टेड है, थोड़ी सी स्टैमरिंग है मेरी स्पीच में, लेकिन मैं ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं हकलाता हूं, लेकिन मैं आराम से हकला रहा हूं. राइट, दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक. और अगर मैं बीच में अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकूं, पुल आउट की प्रैक्टिस भी कर सकूं, तो मैं कर लूंगा. ये अवसर है मेरे लिए. और अगर मुझको हिचकिचाहट है कि मुझे अजीब सा लगता है, somebody said it feels, I don't know who said it feels always conscious, always slow. I think Ankit said that. Somebody else said something, I don't remember the exact words, but where was I going with that? I lost my train of thought, sorry. um, it happens when you get old. You lose your train of thought. I had a thought, it's escaping me. But let me stop here and see if anybody has any questions, any comments. Let me just pause. Guys, raise your hand and ask your questions. ओह या सॉरी, याद आ गया मुझे, सॉरी. मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको सी द बॉडी इज नॉट यूज टू डूइंग दिस, इट्स नॉट, हमारा जो शरीर है, ये इस चीज के लिए आदी नहीं है. तो अगर हमको थोड़ा सा
टेक्निक यूज करनी है, बाउंसिंग यूज करनी है, और एक्सेप्टेंस भी है हमारे पास कि ठीक है मैं हकलाता हूँ, कोई बात नहीं, तो हम लिसनर को बता क्यों नहीं सकते कि मैं थोड़े से, आई एम गोइंग टू यूज सम टेक्निक्स टू मूव थ्रू माई स्टैमर विद सम ईज। आई ऑलवेज से दैट। जब मैं सोशल सेटिंग में जाता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ कि मैं हकलाता हूँ, तो मैं साथ में ये भी बोलता हूँ दैट I'm going to move my speech a little bit differently so I can feel a little bit less struggle when I talk. So you'll see me repeat some words occasionally that I stammer. And I'm not using the word cancellation because nobody cares what it's called. Like I'm going to repeat some words. I might move through my speech a little bit differently. अब मैंने listener को बता दिया कि मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ, ठीक है, एंजाइटी और कम हो गई, एंजाइटी और कम हो गई, इवैल्यूएशन जजमेंट का मुझे खौफ नहीं है, फियर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बता दिया। तो मैं ये ओकेजन जो है ये यूज करूंगा अपनी टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए। So you maximize your chances of reducing struggle by doing the following things. Number one, practicing in a closed-ended way. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी टेक्निक यूज करनी है आपको सारा दिन यूज कीजिए। अगर आपकी ऐसी फितरत है कि आप सारा दिन यूज कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यू विल लूज फोकस। सारा दिन स्पीच एक ऐसा ऑटोमेटिक बिहेवियर है कि अगर हमको सारा दिन कोई नॉवल चीज प्रैक्टिस करने, वी लूज फोकस। और अगर फोकस खो गया, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है, then we won't be able to use these techniques. We'll revert back to what Dr. Vijay is calling the old equilibrium. ओल्ड इक्विलिब्रियम क्या है कि मेरी बॉडी सेंस करती है कि मैं हकलाऊंगा तो मैं पुश करने में पुशिंग के लिए तैयार हूं, एफर्ट के लिए तैयार हूं। जैसे कि हमारी एंटिसिपेटोरी एंजाइटी है कि हम उस शब्द के ऊपर मैं जानता हूं कि मैं हकलाऊंगा, अपने नाम के ऊपर डेफिनेटली हकलाऊंगा, तो बॉडी का सेंस क्या होगा कि मैं जोर लगाऊं, क्योंकि बॉडी जानती है, हमारी बॉडी जानती है कि जोर लगाने से आगे बढ़ते हैं। तो हम जोर लगाने, वी आर रेडी टू पुट द एफर्ट। बट इफ यू डू इट इन अ क्लोज्ड एंडेड वे, I will use pull out or I will use bouncing 3 times tomorrow. Just 3 times. सोशल सिचुएशन में प्रैक्टिस करने के लिए मैं 3 बार यूज करूंगा, या 2 बार या 4 बार, जो भी। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट लिमिटेड, स्टार्ट फ्रीक्वेंट, डू इट फ्रीक्वेंटली। डिटर्मिन कीजिए कि मैं किस शब्द के ऊपर बाउंस करूंगा, एंड इफ यू कैन टेल द लिसनर that you're going to be using a technique. That is why leveling is very important. Decide करना कि हमारे communication partners कौन से हैं जिसके साथ मैं safe feel करता हूँ, जिनके साथ ज्यादा comfort है, उनके साथ start कीजिए। छोटी conversation में कीजिए, उनको बताइए कि मैं use कर रहा हूँ। You'll get more comfortable. When you get more comfortable using it, record yourself. Watch yourself in a social situation using the technique. Do it again, next day, next day, next day, next day, next day. It doesn't have to be much. And the only way we can build frequency builds momentum. Momentum. ये मेरी असली हकलाहट थी वो मोमेंटम पे, तो मैंने इसको रुका, सोचा मैंने कहाँ पे हकलाया, मैं सेकंड सिलेबल पे हकलाया था, तो मैंने डिटरमिन किया कि मैं उसको फिर से बोलूंगा, तो मैंने फिर से रिपीट किया, मोमेंटम, momentum, momentum. Now what I'm doing with the cancellation is I'm canceling out the previous stammer and I'm replacing with something that is not necessarily fluent. The idea is not to get fluent. The idea is to be doing it again with less struggle. कुछ change करना है. Something we want to change. Okay. So let's talk about cancellation, particularly about cancellation, because that is one of the in speech therapy,
That is one of the first things very often we begin with. क्योंकि cancellations are at one level very difficult and at one level very easy. एक लिहाज से आसान है, एक लिहाज से बड़ा मुश्किल है. तो let's talk about मुश्किल क्या है उसमें. मुश्किल क्या है, ये पुल आउट है. मुश्किल मुश्किल क्या है. मुश्किल कैंसलेशन में ये है कि हमारी टेंडेंसी है, हमारा इक्विलिब्रियम जो है, आई लव दैट वर्ड दैट डॉक्टर विजय इज यूजिंग, हमारा इक्विलिब्रियम ये है, हमारा संतुलन ये है कि हम स्टैमरिंग एक बार हो गई तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं. The typical response in the body is to not acknowledge the moment of stammering, is to sort of get away from it as quickly as we possibly can. So we are doing the opposite. We are approaching where our tendency is to avoid. So right off the bat, you are confronting something that you're not used to doing. So you're stepping out of your comfort zone. Immediately in a cancellation, you're stepping out of your comfort zone. Second, अगर आप कैंसलेशन प्रॉपरली कर रहे हैं तो उसके काफी स्टेप्स हैं. तो एक स्टेप जो है, जो स्टेप्स जो हैं, ये कंबाइंड वे में एक्रोनिम बनाते हैं स्टॉप, STOP. हर एक अक्षर का माने है. क्या माने हैं? The word, the sound, the letter S in stop means कि जब हकलाहट हुई तो स्टॉप, मूवमेंट को रोकिए. इमीडिएटली स्टैमरिंग के बाद जिस शब्द के ऊपर भी स्टैमरिंग हुई है, हकलाहट हुई है, रोकिए. ओके. T, take a pause, or if you're feeling out of breath, take a breath. T is for taking a pause or taking a breath. O in stop, observe. सोचिए कि कहां पे टेंशन थी मुझे, किस किस साउंड के ऊपर हकलाया, कैसे हकलाया, मैंने कैसे पुश किया, मेरी जीभ कहाँ थी, किस टाइप से मैं पुश कर रहा था, लिप से पुश कर रहा था, आंखें चिपका रहा था, ये सब कुछ मैं कर रहा था. इसलिए आपने जो भी एक्सरसाइजेस की हैं अपना सेकेंडरी बिहेवियर नोट करने के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज O इज अबाउट अवेयरनेस. You're developing awareness. By observing, you're developing awareness कि मेरा रोल क्या था इस स्टैमरिंग मोमेंट में, मैंने कैसे पुश किया. That's O. P in stop, the last letter, is proceed in a different way. जो मैं दिखाता हूं आपको कैसे लगेगा. अगर मैंने कैंसलेशन पे हकलाऊंगा, मैं फिर से उस शब्द के ऊपर हकलाऊंगा और कैंसलेशन पे कैंसलेशन करके दिखाऊंगा आपको मैं. जैसे कि शब्द है कि कैंसलेशन. रुका मैं, टेकिंग ए ब्रेथ. अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने कहाँ कहाँ अटका था, मैंने कैसे, मेरा सेकेंडरी बिहेवियर कैसा था. तो मैं जानता हूं कि जब मैं अटका था कैंसलेशन में, क साउंड के ऊपर अटका था. और क में जो जीभ को पीछे का पार्ट है वो मेरे आलू के ऊपर लगा और उसको मैंने रिपीटेडली पुश किया. क, 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 और जब शब्द नहीं निकला तो मैंने और जोर लगाया ताकि ताकि इसलिए मेरा सर हिलने लगा. फिर जब एफर्ट काम नहीं किया तो मैंने और जोर लगाया, तो और जोर में मेरी आंखें बंद हो गई, मैं कैमरा से आई कांटेक्ट खो दिया मैंने, और फिर मैंने जोर लगाया और फिर निकला शब्द. दैट इज O. मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे इस मोमेंट में सेकेंडरी बिहेवियर क्या था. फिर what I have not shown you is the last part, the P, proceed with a different posture. तो अगर मुझको और टेक्निक कोई नहीं आती लेकिन वॉलंटरी स्टैमरिंग आती है, बाउंसिंग आती है, लेट्स से ये दो चीज मुझको आराम से मैं कर सकता हूं, तो मैं फिर रिपीट करूंगा शब्द क क क
cancellation. Now I proceeded, the P in proceed, I proceeded in a different way. Okay. तो इस कैंसिलेशन करने के लिए ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि सोशल सिचुएशन में ये सारे स्टेप्स करना जो है हमारी बॉडी यूज टू नहीं है, हमारी आदि नहीं है। लेकिन ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस शब्द के ऊपर मैं हकलाऊंगा। वॉलंटरी स्टैमरिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसी इसी बहाने, और वॉलंटरी स्टैमरिंग करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कैंसलेशन। Now, what is a cancellation going to do? So it's difficult to do because it's difficult to have to do all these things in a, you know, uh, in a controlled kind of a way, in a spontaneous kind of a way. Now, उसकी advantage क्या है? अगर cancellation, अगर हकलाहट हुई तो एक बार हो गई, ठीक है, तो उसको वापस जाने का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वापस जाने पे आई एम टर्निंग एवरी स्टैमरिंग मोमेंट इनटू अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि मैं इस स्टैमरिंग से मेरी बॉडी जो है सीख भी रही है कि मैं किस डिफरेंट ढंग से, कम संघर्ष से, कम एफर्ट से, कम स्ट्रगल से कैसे बोल सकता हूं, ये शब्द कैसे बोल सकता हूं। ओके। सेकंड, अगर ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, STOP जो है एक्रोनिम, ये सारे स्टेप मैं कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं अपनी मूवमेंट को, मैं सोच रहा हूं, मैं एक ब्रेथ ले रहा हूं, फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और फिर बोल रहा हूं, आई एम रेजिस्टिंग टाइम प्रेशर। By doing all this, I'm resisting time pressure. One of the biggest skills that we can learn as people who stammer is resisting time pressure. Time pressure is killer. Time pressure complicates everything. And time pressure leads to a lot of anxiety. So I'm learning how to resist time pressure. Okay. I'm approaching the stammering moment. So number one, first of all, the fact that I'm even going back to the stammered word means that I'm engaging in approach behavior, not avoidance behavior. I'm teaching my body to approach the same moment of stammering in a different way. I'm resisting time pressure. I'm reflecting. मैं सोच रहा हूं कि मेरी कहां पे टेंशन थी, मैं सेकेंडरी बिहेवियर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। सो दिस रिफ्लेक्शन built into the technique. And then fourth, चौथी बात यह है, तो चौथी एडवांटेज ये है कैंसलेशन की कि मैं अपनी बॉडी को सिखा रहा हूं कि ये शब्द जो है डिफरेंटली, लेस संघर्ष से, लेस स्ट्रगल से भी बोला जा सकता है, उसी मोमेंट में बोला जा सकता है। So I'm not going to get very deep into this in terms of behavioral learning theory, but I will say one thing and then I'll stop and then I'll take some questions and comments. Why it is called a cancellation? Because there is an inherent reward in forward movement. And so every time we stammer, every time we push and move forward, the body is learning a reward system that in order to move forward, you have to push. What I'm doing in cancellation is I'm canceling that reward. The reward from moving forward by pushing. And I'm replacing the reward system in the body. Because now I'm moving forward with less struggle. That's a complicated point. I understand. It takes a lot of background and conditioning principles to understand this point. So that's okay. But the point is, it's called cancellation. मैं previous stammering moment को cancel कर रहा हूँ, उसका reward system cancel कर रहा हूँ, ताकि मैं नया reward system उसको replace कर सके। उस नए reward system में यह है कि मैं फिर से repeat कर रहा हूँ। Motor rehearsal is something that is very commonly experienced. We typically, one of the biggest things why cancellation is used as a speech therapy technique is because it rides on motor rehearsal. मोटर रिहर्सल का मतलब ये है कि जब हम खुद हकलाते हैं और खुद रिपीट करते हैं वर्ड, रिहर्स करते हैं, फिर से बोलते हैं,
तो टिपिकली थोड़ा सा लेस स्ट्रगल होता है, मोर फ्लुएंट होता है ना। ये ऑपोजिट सिचुएशन है व्हेन द मोटर रिहर्सल इज क्यूड बाय समबडी एल्स। अगर कोई हमें रिपीट करने के लिए बोलता है तब हमें मुश्किल होती है रिपीट करना। लेकिन हम जब जब खुद रिपीट करते हैं तब ये फैसिलिटी हमारे में है। सो इट्स लेवरेजिंग मोटर रिहर्सल as one of the basic facts about the stammering experience. I've been talking for a very long time. I'll be quiet. Anybody wants to say anything? Any comments? Any questions? सवाल है किसी को? किसी को? Guy goes on. Raise your hand and ask your questions. And you can ask any question about the techniques, cancellation as well as other 4 techniques. And if nobody is going to ask question, then maybe I should ask everyone a question. Okay. Manish is there to ask a question. बोलिए मनीष. अभी कैंसलेशन टेक्निक बताई थी। इसको मैं एक क्रिकेट मैच आता है उससे रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं और जब कोई बैट्समैन आउट हो जाता है या तो वो हम कई बार देखते हैं कि वो बैट्स को दोबारा उसी दिशा में दोबारा या दूसरी बार घुमाता है, तो वो अपने आप को करेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने स्पोर्ट्स एनालॉजी दी। बहुत सही स्पोर्ट्स एनालॉजी दी क्योंकि ये स्पोर्ट्स एनालॉजी जो है, स्पोर्ट्स एनालॉजी दे सकते हैं। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आपने कोई रॉन्ग नोट लगाया, रॉन्ग नोट प्ले किया, तो आपका जो इंस्ट्रक्टर बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे करो, फिर से करके दिखाओ। राइट? तो ये भी रिहर्सल है। एक बार रिहर्स की तो आसान हो गया, दूसरी बार। योगेश्वरी का सवाल है, उसके बाद डॉक्टर विजय के पास जाएंगे। सर वो जो आपने SOP जो टेक्निक्स बताई वो एक बार फिर से बताएंगे क्या? एक बार क्यों ना पूछ लें, देखिए किसी ने और को याद है नहीं है, किसी और ने कैच किया कि नहीं कैच किया। तो स्टॉप कौन बता पाएगा? 4 स्टेप्स STOP। हाँ अरहम बताइए अरहम। सर हाँ बोलिए स्टॉप अरहम। जब जी सर, हम्म, तो स्टॉप में सबसे पहले जो एस है वो है, जब भी हम ब्लॉक में जाएं तो स्टॉप हो जाए, वो एस का मतलब स्टॉप ही होना है कि रुक जाएं। और फिर टी 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 जो है वो टेक अ पॉज, और इफ यू नीड टू वांट टू टेक अ ब्रेथ तो आप सांस ले लें, तो आप फिर सांस ले सकते हैं। और साथ में ऑब्जर्व भी करिए कि मेरी कोई सेकेंडरी तो नहीं है, या फिर मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ किस वर्ड पे। फिर उसको किसी न किसी टेक्निक से आप प्रोलॉन्गेशन बाउंसिंग जो भी आप यूज करना चाहते हैं उससे फिर दोबारा बोलिए आराम से, लेस स्ट्रगल के साथ। सही, बिल्कुल सही। तो एक बार कैंसलेशन प्रैक्टिस करते हैं हम, आप और हम। तो मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। मैं आपको टाइमर पे लगाऊंगा, 30 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, 30 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा। ओके? ओके। तो सोचिए आप मेरे से स्पीच थेरेपी थोड़ी ले रहे हैं। तो अगर आप, मैं टाइमर लगाऊंगा 20 सेकंड का, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए और डिसाइड कीजिए मैं किस वर्ड के ऊपर हकलाऊंगा। हकलाइए। और अगर नेचुरली हकलाहट हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको पर फोकस करूंगा मैं। तो किसी भी शब्द के ऊपर डिसाइड कीजिए कि किस शब्द के ऊपर मैं हकलाऊंगा, और मैं ऐसे हकलाऊंगा। देन वी विल डू कैंसलेशन ऑन दैट। ओके? ओके सर। ओके, स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम अ- 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 अरहम। रुकिए 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 रुकिए, हाथ देख देख देखिए।
सो आप रुक गए, ठीक है, दैट इज स्टॉप। अब एक सांस लीजिए। ओके, ठीक है। और मुझे बताइए क्या 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 किया था जब 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 आपने नाम पे हकलाए थे, तो क्या हुआ? आपके आपके शरीर में टेंशन कहाँ थी? कहाँ कहाँ पुश कर रहे थे आप? कैसे पुश कर रहे थे? एक तो आवट पे अटक गया था, और जब बहुत ज्यादा जान लगा रहा था तो सिर्फ आ ही बाहर आ रहा था, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा था। हम्म। किस 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 जगह पे आपको महसूस हो रहा था अटके हुए? यहाँ अटके हुए थे, यहाँ अटके हुए थे, दोनों जगह अटके हुए थे? कहाँ नहीं, कहाँ आपकी स्ट्रगल कहाँ थी? इधर, इस साइड। यहाँ पे आ ज्यादातर यहाँ थी। ओके, ज्यादातर यहाँ थी, ठीक है। तो अ पे अटके थे। आपकी सेकेंडरी बिहेवियर कौन से थे? आपने आंखें झपके आई थी? थोड़ी आंखें भी झपकाई थी। आंखें भी थोड़ी सी झपकाई थी, ठीक है। तो एस कर लिया हमने, टी कर लिया, ओ भी कर लिया। अब लास्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर से रिपीट कीजिए अपना नाम, और कुछ मे- चेंज करके बताइए, थोड़ा सा आसानी से। मेरा नाम अ, 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 अरहम है। देयर वी गो। तो आपने पिछली वाली जो संघर्ष है उसको कैंसिल कर दिया। ये आपने कैंसिलेशन की। अब इस टाइप की प्रैक्टिस किसी कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ अगले हफ्ते कर सकते हैं आप? यस सर, जरूर ट्राई करूंगा। ओके, सो ट्राई करने का प्लान बनाते हैं। आप और हम थोड़ा सा ट्राई करने का प्लान बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिमुलेट कर रहा हूं कि अगर हम स्पीच थेरेपी लेते तो कैसा, क्या 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 प्लान बना सकते हैं। तो मुझे बताइए कि दो दो तीन लोगों दो 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 तीन व्यक्तियों के बारे में बताइए जो आपके ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर्स हैं, जो जानते हैं कि आप हकलाते हैं और जो आपको फुली सपोर्ट करते हैं। हम्म। पहले तो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, और फिर कुछ दोस्त हैं जो काफी सपोर्ट करते हैं, वेरी गुड। उनके साथ। ओके, तो फैमिली मेंबर्स जनरली सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ होंगे तो ज्यादा सपोर्टिव होंगे, जो कुछ होंगे तो कम सपोर्टिव होंगे, राइट? हम्म, कह सकते हैं थोड़ा, बिल्कुल। ओके, कह सकते हैं। तो सबसे सपोर्टिव कौन है? सबसे सपोर्टिव मेरी बहनें और अम्मी। ओके, तो अपनी एक बहन को या दो बहनों के साथ आ, थोड़ी सी कैंसलेशन प्रैक्टिस कीजिए अगले हफ्ते। कितनी बार करेंगे आप? सर, क्या डिसाइड किया आपने? दिन में 2-3 मर्तबा कर लूंगा। ओके, दो तीन मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे अगले हफ्ते, एवरी डे और एवरी अदर डे? किस दिन अगले हफ्ते, सर किस दिनों में प्रैक्टिस करेंगे आप? सर डे डेली भी कर सकता हूँ। ओके, तो क्या बोलेंगे इनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए? अ, कोई भी जैसे नॉर्मल बात चल रही होगी, और जहाँ पे मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा कि यहाँ पे मैं अटकता हूँ, पहले मैं हकलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कैंसिल कैंसिलेशन टेक्निक यूज करूंगा। ओके, दैट्स अ प्लान, राइट? बिकॉज अरब ने क्या किया है कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये टेक्निक उसको प्रैक्टिस करनी है, किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, कितने दिन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है इसका लास्ट स्टेप जो है विच इज क्लोजिंग द लूप, उसको लूप क्लोज करने के लिए लिखिए इसके बारे में, जर्नल कीजिए। अगर लिखना अच्छा नहीं लगता आपको तो ऑडियो जर्नल कीजिए। मतलब कि अपने फोन पे रिकॉर्ड करके बताइए कि आपका क्या क्या अ, 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 अनुभव क्या रहा कि मेरी हाफ कैंसलेशन थी, मैं अटकने वाला था अनुभव पे।
तो मैंने बीच में रोका, हाफ कैंसलेशन। अनुभव, अनुभव, ये हाफ कैंसलेशन थी, मैंने वर्ड कंप्लीट नहीं किया, अधूरा रह गया, लेकिन ठीक है, दैट इज अ हाफ कैंसलेशन। फुल कैंसलेशन होती कि मैं पूरा शब्द को कंप्लीट करके फिर रिपीट करता। आधी कैंसलेशन में मैं इन बिटवीन में है, मैं मूवमेंट को इंटरप्ट कर रहा हूं। दैट्स अ प्लान। वी कैन ऑल मेक अ प्लान लाइक दिस कि अगर हमको अगले हफ्ते कैंसलेशन प्रैक्टिस करनी है, अगर हम ये टेक्निक हमको जायज लगती है अपने लिए, तो उसको 2-3 बार ऑन ए डेली बेसिस ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, डोंट गो टू एनीबडी दैट इज डिफिकल्ट, कीप इट सिंपल। उसके बाद जो है, वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू इट, इन व्हाट वेज डू यू डू इट, इन व्हाट टॉपिक्स डू यू डू इट, डू यू डू इट विद समबडी हु यू आर लेस कंफर्टेबल विद। जैसे कि अरम ने बोला कि बहनों के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन उन बहनों में भी एक के साथ शायद ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके साथ कम कंफर्टेबल। देन लेट्स टेक समबडी हु इज लेस कंफर्टेबल विद, एंड लेस कंफर्टेबल एंड लेस कंफर्टेबल, मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इन एनी टेक्निक, वेदर इट्स बाउंसिंग और प्रोलॉन्गेशन और whatever, अगर हम ये सिस्टमैटिक सीक्वेंस बिल्ड कर ले, तो हम सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि हमको अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन इंक्रीज होगी, और अगर मोटिवेशन इंक्रीज होगी तो हम अगले दिन भी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करना कठिन नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 बार कर रहे हैं बस, और ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ कर रहे हैं। उसके बाद जो है, लेट्स रैम्प इट अप अ लिटिल बिट, लेट्स चेंज अनदर वेरिएबल, लेट्स चेंज अनदर वेरिएबल, लेट्स चेंज अनदर वेरिएबल। Okay, that's all I've got. Anybody has any questions? Yes, Dr. Vijay. Sir, regarding cancellation, regarding cancellation, uh, suppose there is a block in the word. Vijay is my name. Suppose it is like this. We Vijay, or we Vijay. So this there are the these are the two types of I think cancellation. Which one is better? I mean, shall I have to view Vijay, or view Vijay? So I mean, what I should do? अनम्यूट। हाँ, सॉरी। तो मुझको कुछ अंतर नहीं लगा। आप हाँ, आई थिंक आपने फर्स्ट वाली एक बार आप फिर करके दिखाइए। View Vijay. Oh, Vijay. ओके, सेकंड वाला वाज द पुल आउट। सेकंड वाला पुल आउट करना चाहिए या कुछ पॉज करके सर, मतलब आगे वही वर्ड बोलना चाहिए? व्हाट तो शुड पुल आउट और चीज है, ये रिलेटेड है, कैंसलेशन से रिलेटेड है, लेकिन पुल आउट एक दूसरी टेक्निक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं अगर समय है। लेकिन कैंसलेशन जो आपने पहली बार किया था, जैसे आपका नाम बोला था, मैं आपको आई विल से इट लाइक यू जस्ट सो आई कैन फील इट ऑल्सो, इज विजय, विजय, दैट्स अ कैंसलेशन ना। उसमें आप थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, और ये है कि कैंसलेशन आपने की मतलब कि अपना नाम बोला, हकलाट, हकला के नाम बोला आपने, फिर आप रुके, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे कि, तो अगर मैं इस वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस, अरे आप और हम, तो फिर से करके दिखाइए मुझे, और फिर
फिर रुकिए, आप नाम पे हकलाइए, फिर बस 1 सेकंड के लिए रुक जाइए बस, और कुछ आगे मत बोलिए। व्यू 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 ओके, से योर नेम। व्यू 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 विजय। ओके, गुड, स्टॉप। तो नाउ यू टेकिंग अ ब्रेक। आप उस नाउ 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 वी टू ओ। आप थोड़ा बताइए कि किस अपने नाम पे कैसे हाथ लाए थे। Sir, these lips where came together, and there was हम्म stress in like throat. हम्म हम्म So where these the muscles were like tight, and okay, there was a phase that I could not even have some thought in the mind. तो ऐसा हम्म लग रहा था कि बाहर ही नहीं निकलेगा। ऐसा तो लगे बाहर ही नहीं निकलेगा, हाँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन महसूस हुई आपको, लिप्स भी पर्स थे। हकलाहट का फॉर्म कैसा था? रेपिटेशन थी, प्रोलॉन्गेशन थी, ब्लॉक था, क्या था? नहीं निकाल सकता था मैं बाहर से, मैं हाँ हाँ। पुल आउट का पॉसिबिलिटी। लेकिन जब आपने कहा व्यू 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 विजय, तो रेपिटेशन कर रहे थे ना? रिपीटेशन। ठीक है, हाँ। तो आपने चीजें आइडेंटिफाई की। एक तो आपने नाम पे किया, पहले एलेबल पे किया था, सेकंड एलेबल पे किया था? आपके नाम में दो एलेबल है, विजय। वी पे किया फर्स्ट। बी पे किया था, तो ठीक है। तो आपने पहले सिलेबल पे किया था, अपने नाम पे किया था, रेपिटेशन करके किया था, और आपकी जो टेंशन यहाँ पे फील हुई। ये ओ जो है, ये स्टेप जो है, ये सब जो रिफ्लेक्शन जो मैं कर रहा हूं आपके साथ, आपकी हकलाट के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। इसको स्किप मत कीजिए। और अगर आपको फिर से रिक्रिएट करनी है मूवमेंट, तो फिर से हकलाहट रिक्रिएट कीजिए। सेकंड स्टेप में अगर आपको याद नहीं है आपके हम कैसे हकलाया था, कहाँ पे टेंशन, तो रिक्रिएट करके बताइए। ओके, फिर फिर नाम बोलिए। अब आप मुझे बताइए कि आप अगली बार जब नाम बोलेंगे अपना, तो आप कैसे हकलाएंगे, आराम से कैसे हकलाएंगे। हकलाइए, लेकिन थोड़ा सा डिटरमिन कीजिए कि कैसे हकलाऊंगा मैं। वी व्यू विजय। देयर वी गो। ठीक है, तो आपने पहला जो संघर्ष है वो कैंसिल कर लिया, तो दैट इज सर कैंसिलेशन। मेरा मेरा ये सवाल था सर कि हम्म सपोज सपोज ब्लॉक आ गए, ये तो मैंने डिलीबरेटली किया था अभी, लेकिन ब्लॉक आ गया सपोज है ना, कि मुझे अगर एक्चुअल वर्ड पे ब्लॉक आता है, ये हम्म ये ये मतलब एक्चुअल पे आ गए, राइट। एक्चुअल वर्ड में बोल ही नहीं पा रहा हूँ, यही 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 यही, तो मैं सांस लेके जैसा कि यही 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 एक्चुअल, तो ये ठीक रहेगा कैंसलेशन, या पुल आउट करके वर्ड बाहर निकालना ठीक रहेगा? पुल आउट करके वर्ड बार निकालना, तो ऑब्वियसली कैंसलेशन से थोड़ा बेहतर है। क्योंकि बेहतर इसलिए है क्योंकि आप स्टैमरिंग को मोमेंट में चेंज कर रहे हैं, रियल टाइम में चेंज कर रहे हैं। कैंसलेशन को पोस्ट करेक्शन बुलाते हैं ना, कि स्टैमरिंग हो गई, अब उसको ठीक से रिविजिट करके अब दूसरी तरह से मैं कैसे हकलाऊं, ये कैंसलेशन का प्रिंसिपल है। रोल आउट का प्रिंसिपल है कि जब हकलाहट हो रही है मुझको, जब मेरे हार्ट जब जब मेरे होंठ जो है प्रेस कर रहे हैं, जब मेरी टेंशन यहाँ पे टाइट हो रही है, तो उसको टाइटली तुम उसको लूज कैसे बनाओ उसको। मैं तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग टू यू। अगर आप योगा पोस्चर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने योगा पोस्चर होल्ड किया, तो आपको कोई आपके थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, थोड़ा सा, वाइल द पोस्चर इज गोइंग ऑन, ताकि आसानी से निकाल सकें। तो वो पुल आउट है। तो हमने अभी पुल आउट के बारे में कुछ प्रैक्टिस नहीं की, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि पुल आउट और कैंसलेशन में क्या अंतर है। लेकिन हम कैंसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बेहतर तो ऑब्वियसली होगा कि अगर आप बीच में अरेस्ट कर लें मूवमेंट को, बीच में थोड़ा सा संघर्ष कम कर लें, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल है। बीच में संघर्ष करना, स्टैमरिंग को चेंज करना ज्यादा मुश्किल है।
कैंसलेशन में क्या है कि हकलाहट होने दो, उसके बाद उसको कैंसिल करो। तो माइंडफुलनेस कंपोनेंट उसमें कम जरूरत है। अगर माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस जो है पुल आउट में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं पुल आउट अभी कर रहा हूं, तो मैं माइंडफुल हूं कि जब मेरी हकलाहट हो रही है तो मैं हाँ टेंशन महसूस कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको थोड़ा सा लाइट करके निकाल सकूं। बट पुल आउट इज स्टेप 2। we're talking only about cancellation right now. Any other questions? और कोई सवाल और कोई कमेंट? या मनीष? मनीष, हाँ पूछिए मनीष। स्टोप में एस का मीनिंग था स्टोप, टी का था टेक ए ब्रेथ, ओ का क्या मीनिंग है? ऑब्जर्व। 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 ओ ऑब्जर्व का मतलब यही कि आप ऑब्जर्व कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ पे आ। जैसे कि मैंने डॉक्टर विजय के साथ काम किया, अरम के साथ काम किया, मैंने उनको एहसास दिलाया कि किस शब्द के ऊपर हकलाए थे, कहाँ हकलाए थे, फर्स्ट सिलेबल पे, सेकंड सिलेबल पे हकलाए थे, कैसे हकलाए थे, कहाँ पे आपको टेंशन महसूस हुई, वो ये सब वो है। अच्छा। और लास्ट में पी, पी से क्या मीनिंग होगा? प्रोसीड। फिर प्रोसीड। से कीजिए, फिर से प्रोसीड कीजिए, रिपीट कीजिए वर्ड, थोड़ी सी आसानी से रिपीट कीजिए, कुछ चेंज लाइए इसमें। ठीक है जी, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बाउंसिंग करना चाहते हैं, सो दिस इज व्हाट somebody was saying, was it you मनीष, जो जैसे जैसे कि आपने एग्जांपल थी, जैसे कि आपने एग्जांपल दी क्रिकेटर की, जब कोई क्रिकेटर कोई बैट जो है मिस करता है, बॉल मिस करता है, तो प्रैक्टिस करता है कि मैं कैसे स्विंग कर सकता था। जब कोई बास्केटबॉल खेलता है तो बास्केटबॉल को शूट करता है, लेकिन अगर हुप में लैंड नहीं करती तो उसको देखता है कि अब मैं फिर से जैसे कि मेरा फ्री शॉट हो गया, ठीक है, पेनल्टी पॉइंट है, तो मैं आई हैव अ फ्री शॉट, एक और चांस मिला मुझको, और चांस में जो जो मिला है, तो मैं इसको कैसे जो है बॉल को कैसे पोजीशन करके कर, ताकि मेरी जो पिछली बार किया वो उसको रिपीट ना करूं, कुछ दूसरी ढंग से बॉल शूट करके देखूं। तो रीडू जो है, रिपीट करना, रीडू, वो दैट इज रीडूइंग द मूवमेंट इज प्रोसीडिंग विद डिफरेंट पॉस्चर। तो रीडू जो है हम सारा दिन करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक से नहीं लिखा तो इरेज करके उसको फिर से लिखते हैं। जब बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर शॉट नहीं जो तो फिर से लिखते हैं। ये जो रेपिटेशन जो है, दिस इज ऑल्सो मोटर रिहर्सल। द बॉडी इज यूज टू मोटर रिहर्सल। ये रिहर्सल जो है हम सारी दिन जो है करते रहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिहर्सल की फैसिलिटी स्पीच में ला रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई सवाल, और कोई कमेंट? I think it's almost like 10 o'clock. Yeah, we should end. Yeah. If you've got any questions, you can leave it in Telegram group because Dr. Amit Bajaj is in Telegram group now. So you can write your question or you can leave an audio note there. So he can answer questions there also. Yeah. But most important thing is to practice. Practice with someone you trust. And if you can't find anybody like that, then you can trust among yourself right here in the group. So, for example, Yogeshwari can practice with 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 Divyanshi, or Nyai can practice with Vidya. Dr. Vijay Avari can practice with Bhushan Khandekar. So, and I will also request whenever you do it with someone trusted, you can record and you can share the recording also, because we would like सर to listen to how you are doing cancellation and give you feedback. Yes, बोलिए। सर मैं और
दिव्यांशी कॉल पे प्रैक्टिस करते हैं रोज सर अभी। तो बहुत खुशी की अब बात है ये, वेरी अच्छा गुड। लगता है। हाँ, गुड और आप लोग गुड। कैंसिलेशन भी करिए और उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करिए हम लोग के साथ, यस ताकि हम लोग बता पाएं कि कैंसिलेशन आपका कितना अच्छा है। ठीक सर, है। हम जब हाँ कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो बोलने के लिए कुछ टॉपिक नहीं होता, पर हम जब हमारी पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो हम टेक्निक्स का भी यूज कर पाते हैं, पर वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करना। मेन चीज़ है कि आप उसे करें। और आप न्यायी को भी शामिल कर सकते हैं। न्यायी किसके साथ प्रैक्टिस कर रही है? न्यायी, हाउ, विद whom आर यू प्रैक्टिसिंग these टेक्निक्स? Sir, I'm not practicing with anyone. Is it possible for सर you to हम join लोग this with Divyanshi and Yogeshwari? हम लोग न्याय को Yes, ज्वाइन sir. कर लेंगे। हाँ प्लीज करिए, आप 3 लोग ठीक है, साथ में मैं प्रैक्टिस करेंगे, आज अच्छा आज रहेगा आप लोगों के लिए। ओके गुड। ठीक तो है। एक रिक्वेस्ट मेरा और भी है, जाने के पहले आप सबको 3.1 टास्क करना है, स्टैमरिंग इंटरव्यू, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में करना है। कभी आपने इंग्लिश में किया, कभी हिंदी में किया, मराठी आपकी मदर टंग है तो मराठी में भी करिए, भिन्न भिन्न भाषाओं में करिए। 3.1 जरूर करिए, और जब 3.1 कर रहे हैं तो वहीं पे आप टेक्निक भी यूज करिए। यानी स्टैमरिंग इंटरव्यू में आप कैंसिलेशन भी यूज कर सकते हैं, बाउंसिंग प्रोलॉन्गेशन भी यूज कर सकते हैं, पॉजिंग भी यूज कर सकते हैं, आई कांटेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जरूर करिए ये। तो अगर कोई और सवाल ना हो, कोई फीडबैक ना हो, तो हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। एनी लास्ट थॉट, लास्ट क्वेश्चंस, वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम एनीबडी? जैसे जैसे मनीष जी ने बताया कि लोग क्रिकेट में भी ऐसे घुमाते हैं बैट। वो एनालॉजी बहुत सही है। हाँ, वो बहुत सी एनी एनालॉजी। वो हाँ वो एकदम सही एनालॉजी है वो, क्योंकि हाँ बेसिकली रेपिटेशन है, रीडो है। मैं हाँ। एक चीज बात आपको एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ओस का जो स्टेप है, ऑब्जर्वेशन का जो स्टेप है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है कैंसलेशन में। सारे स्टेप्स क्रिटिकल हैं, क्योंकि कैंसलेशन डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, ऑटोमेटिकली डिसेंसिटाइजेशन है इसमें, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं अपने क्लाउड के ऊपर, वापस जा रहे हैं। और इनएडवर्टेंटली डिसेंसिटाइजेशन ये भी है कि हम ये सब कुछ लिसनर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम, ताकि हम लिसनर को टाइम प्रेशर, हमारे स्पीच को, कि हमारा टाइम लगेगा, ये सिखा रहे हैं कि हम टॉलरेंस डेवलप कर रहे हैं लिसनर में, कि मुझको टाइम दो, गुड पॉइंट। क्योंकि कैंसिलेशन में टाइम लगता है। इसीलिए ये बहुत मुश्किल टेक्निक है सोशल सेटिंग में करने के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर है वहां से स्टार्ट कीजिए। इतनी लंबी छलांग मत मारिए कि लैंडिंग ठीक नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी लैंडिंग ठीक रहेगी, अगर आप छोटी छलांग मारेंगे तो ठीक से लैंडिंग होगी, चोट नहीं लगेगी। ज्यादा लंबी छलांग मारेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी, फिर आप वापस नहीं करेंगे उसको। इसलिए धीरे 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 धीरे, लिटिल 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 स्टेप्स, फ्रीक्वेंसी से मोमेंटम बिल्ड होता है। सो दैट्स ऑल आई गॉट टू से, जस्ट मेक श्योर यू डोंट स्किप द ओ स्टेप। और अगर आप पार्टनर से, अगर आप जैसे कि न्यायी और दिवांशी और योगेश्वरी, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक दूसरे की मदद लीजिए। तो जैसे कि अगर आप, जैसे कि मैंने सेशन में अरम के साथ काम किया, डॉक्टर विजय के साथ काम किया, एक दूसरे के साथ जो है ऐसे आप काम भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर योगेश्वरी दिव्यांशी के साथ कुछ बात कर रही है, किसी वर्ड के ऊपर कैंसिल किया, तो दिवांशी उसको स्टेप्स के साथ ले जा सकती है। मतलब कि स्टॉप कीजिए, ब्रेथ दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ अटकी आप, किस जगह पे अटकी, किस सिलेबल पे अटकी, किस साउंड पे अटकी, कैसे अटकी, कहाँ पे फील हुआ, किस लेवल की टेंशन थी। 1 से 7 के नंबर पे, 1 मतलब लाइट, 7 मतलब कि बहुत टाइट, कहाँ उस स्केल के ऊपर कहाँ आप लोकेट करेंगे अपनी टेंशन लेवल को, और फिर आप रिपीट करेंगे तो टेंशन लेवल नीचे किस नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे जाएगा। इस टाइप की जो गेम्स जो हैं, आप अपने साथ एक दूसरे के साथ प्लेफुल वे में, खेल खेल में
इस टाइप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. Keep it fun, keep it interesting, because then you want to go back to the job. That's why I'm saying don't think about fluency. This is not about becoming more fluent. This is about reducing struggle. This is about desensitization. Cancellation checks off many boxes, many boxes. So I would start with cancellations. Yes. And the best thing, it will make you very mindful. I mean, some of you ask me how to learn mindfulness, how to practice mindfulness. My answer would be do cancellation with attention. You will become very mindful automatically. You don't have to go and learn, you don't have to go to some ashram to learn mindfulness meditation. You can do it right here in your own home when you're doing cancellation mindfully, when you're practicing pausing mindfully. You are becoming a mindful person by doing these things. मुझे लगता है कि आज के लिए इतना प्रवचन काफी है. That's right. आज हम लोगों ने काफी अच्छा प्रवचन दिया है. अब काफी अच्छे, असली काफी लंबा लेक्चर हो गया आज. Sorry. अब देखना ये है कि चेले लोग कितना कर पाते हैं, कितना करते हैं. करिए और रिकॉर्ड्स शेयर करिए, और या कुछ ये बताइए कि आज मैंने ये टेक्निक करी, मुझे ऐसा लगा, या ये मुश्किलें आई. मुश्किलें भी आएंगी बहुत सारी, तो शेयर करिए, बातचीत करते रहिए ग्रुप में. सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच. डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच. कैंसिलेशन आज अच्छे ढंग से कवर हुआ है. थैंक यू सो मच. अरहम, थैंक यू सो मच. विद्या, न्यायी, योगेश्वरी, अंकित, दिव्यांशी, डॉक्टर और मैं विजय, आपको अगले मनीष. हफ्ते I will see you next Saturday. I will see you next पक्का. Saturday again. हाँ, अब एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू मीट. बिल्कुल. Yes, I'm going to be here every Saturday, and if you want to learn pull-outs next time, we can do that. But I want to hear from you. I want to hear from everybody. Those of you who have tried cancellation, how did it feel? Because then we can talk about each one and say, how can you make this more challenging? Or maybe not make it more challenging next week. Maybe but 2 or 3 weeks it's not challenging. It's comfortable. First you got to get comfortable in order to challenge yourself a little bit. So get comfortable first. All right, guys. Talk to you later. See you soon. Bye.